Welcome you all. My name is Mohammad Tufail. I am assistant professor at University of Sindh Campus Padin, and presently I am talking you from the platform of Paragon Academy Padin. Today we are in the 14th sessions of this free online language classes, and I welcome you all. And I am thankful for the response what you have given, and also the interest what you have shown in this language system. In our previous classes, we talked about language skills. Then we also talked about essentials, and systematically we believe that in order to use this language, especially what we are talking about here, English, in order to use it, we discussed that we should focus on three things: semantics and phonetics and syntax. And we decided in order to improve semantics, we would cover different videos, different material that we would use in order to enhance our semantics. And when we are going to talk about this semantics, either through listening or reading, but at both times we will be equally focused on the phonetics, proper pronunciations of the words what we are learning, and then the syntax, what is third part, what we call grammar. तो हमने ये तय किया था कि लैंग्वेज सीखने के लिए हमें पहले तो उन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है कि दैट इज़ रनिंग वोकैबुलरी जो हमारी ज़रूरत होती है, और फिर उसके साथ तलफ़्फ़ुज़ प्रोनंसिएशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, और तीसरी चीज़ ग्रामर में आ जाती है व्हाट वी कॉल सेंटेंस. एंड इन दिस कोर्स व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट टेकिंग दी थ्री कंपोनेंट टुगेदर. हम जो है ना वो सेमेंटिक्स को भी, सेंटेक्स को भी और फोनेटिक्स को भी साथ लेकर चल रहे हैं. सो आज हमारा जो है ना 14th सेशन में हमने 13 सेशंस के अंदर वी डिस्कस अबाउट सेंटेंस, व्हाट इज़ अ सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ सेंटेंसेस. बट बिफोर गोइंग सेंटेंस वी टॉक्ड अबाउट व्हाट्स अ वर्ड and what is a phrase and what is a clause, and then we talked about that what is a sentence, then a part of sentence, and this was our 13th session. So today we will complete this topic or this chapter of area of this sentence, and I will just repeat the previous session a bit, then we would proceed further. And if anybody can confirm me, Mehboob, thank you very much, and Azir, thank you very much. Anybody can confirm me if my voice is clear to you and the picture is clear to you, so that we could proceed further. Thank you. Thank you, Akram. Thank you, Ayaz. Thank you very much. So let us move to this sentence, structure of sentence and how it is being made. So please. When we talk about sentence, we believe that sentence is a combination of a word or phrase or clauses. तीन चीज़ें मिलकर sentence को बनाती हैं. First thing is word which has a meaning. Any word like a book, like a pen and teacher, they are words, they carry a meaning. There could be one syllable or more than one syllable. उसमें एक phoneme या एक से ज़्यादा phoneme या हम syllable को मिलाकर words को बना सकते हैं. That is and every word carries a one meaning. हर वर्ड के पास अपनी एक मीनिंग होती है. दैट कुड बी मीनिंग जस्ट इन अ डिफरेंट सेंस. फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड की कोई फिक्स मीनिंग हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उस वर्ड्स के एक से ज़्यादा मल्टीपल यूसेज हो सकते हैं. तो अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोल कर देखेंगे तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या करती है कि एक वर्ड को जो है ना वो उसके जितने भी इस्तेमाल होते हैं तो वो डिक्शनरी बताती है कि इस वर्ड्स के आप कितने कंटेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑफ दिस जो वर्ड फ़ैन, अब एक तो फ़ैन सिंपल ये है कि जो एक जो है ना फ़ैन जो आप लगाते हैं हवा देने के लिए, वी कॉल इट अ फ़ैन. ओके, एक फ़ैन की मीनिंग यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 और नंबर 2. ओके, ये लगाए गए हैं. तो ये बता क्या रहा है कि इस वर्ड को हम दो सेंस में यूज़ कर सकते हैं. एक फ़ैन का मतलब है पर्सन हु एडमायर समबडी. ओके, जब कोई किसी को पसंद करता है, वी कॉल इट के जी ये लता मंगेशकर के फ़ैन हैं, ये जो है वो
अमिताभ के फ़ैन हैं, तो फ़ैन मीन द पर्सन यू एडमायर एंड लाइक दैट, ओके। तो एक फ़ैन का मतलब, दूसरा फ़ैन इज़ ए मशीन विद ब्लेड्स दैट गोज़ अराउंड टू क्रिएट अ करंट अफेयर, जिससे आप हवा लेते हैं, जिसको आप पंखा बोलते हैं। तो अब फ़ैन के जो है ना लैंग्वेज में यूसेज के, तो ये डिक्शनरी हमें यह बता सकती है कि इसके कितने यूज। और तीसरा भी यह थिंग दैट यू होल्ड इन योर हैंड एंड अ वेव टू क्रिएट अ करंट ऑफ कूल एयर, और एक वो हाथ वाला पंखा होता है, उसको भी हम फ़ैन कहते हैं। तो ये फ़ैन जो है ना वो 3 सेंस में यूज़ हो सकते हैं। और फिर जब हम फ़ैन को बतौर वर्ब यूज़ करते हैं तो भी उसके 1, 2, 3 जितने भी मीनिंग है, तो ये डिक्शनरी हमें बताती है कि एक वर्ड के कितने पॉसिबल इस्तेमाल हैं, व्हाट आर द पॉसिबल यूसेज ऑफ वन सेंटेंस। सो इफ़ यू विल गो टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इट विल गिव यू विद हेल्प ऑफ दीज नंबर्स 1, 2, 3। ये जो नंबर हैं ये बता रहे हैं कि इस लफ्ज़ को कितनी मुख्तलिफ मानाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट इज़ डिक्शनरी इज़ हेल्पफुल ऑलवेज। सो वर्ड इज़ लाइक दैट थिंग। देन वी कम टू फ्रेज, और फ्रेज़ का जो काम होता है, फ्रेज़ जो है ना वो बेसिकली आपको एक सेंटेंस को जो है ना वो दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, that's not a complete in sense, okay, but it's a simple a group of words that carries a particular meaning। वो जो है ना एक पर्टिकुलर जो है ना वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके पास एक जो है ना वो सेंटेंस का ये भी पार्ट बनते हैं, और दे जस्ट बिकम सर्व एज ए पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ओके। एंड लुक इज दिस द बुक, दैट पेन on the table, over the wall, or early in the morning, these are phrases। and फ्रेजेस एक अल्फाज की कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। अब क्या है कि सेंटेंस है, फ्रेज डिफरेंट इसलिए है कि सेंटेंस के पास अपनी एक कंप्लीट मीनिंग होती है, और जो फ्रेज है उसके पास कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, दे हैव सिंपल पार्शल मीनिंग लाइक दिस, ओके। सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड सेंटेंस लाइक। तो फ्रेज इज़ जस्ट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास एक पार्शल मीनिंग होती है सेंटेंस के लिए। जो देन कम टू क्लॉज। अब क्लॉज जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्लॉज जो है ना वो ये भी सेंटेंस का पार्ट बनता है, लेकिन इसके पास सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी हो सकता है, इसके पास ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मकसद सेंटेंस की जो हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि सेंटेंस के पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर प्रेडिकेट से खाली वर्ब भी निकल सकता है, ऑब्जेक्ट भी निकल सकता है, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों निकल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट खाली निकल सकता है, या एडवर्बियल हो सकता है। तो सेंटेंस के पास 2 चीज़ें हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लॉज के पास भी 2 चीज़ें टेक्निकली वही हैं जो सेंटेंस के पास हैं, लेकिन सेंटेंस के पास एक अपना कंप्लीट सेंस होता है जो वर्ब के जो है ना अपना क्लॉज कैरी नहीं करता। क्लॉज जो है वो अकेला जब हो जाता है तो फिर अपना मतलब जो है ना खो बैठता है। जिस तरीके से आप देखें अब यहाँ पे इसको ये क्लास की है कि सेंटेंस विच इज़ कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब यूजुअली ज्वाइन टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाय अ कंजक्शन। अक्सर तौर पे हम इसको कंजक्शन की मदद से जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे फॉर इंस्टेंस अली सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। अब ये जो दैट है ना ये कंजक्शन है, ही वुड कम द नेक्स्ट डे, वो अगले दिन आएगा। अली सेड, अली ने कहा। अब देखें इसमें जो एक पार्ट है सेंटेंस का वो कंप्लीट है, वो हर जगह पर अपनी मतलब रखेगा। दूसरा जो पार्ट है वो डिपेंड करता है उस अगले पार्ट के साथ, जब उसके साथ मिलता है तो वो जो है ना अपना फिर मफ़हूम या मतलब रखता है। अगर उससे अलहदा हो जाए तो फिर वो मतलब नहीं रखता। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम तमाम क्लासेस को कंजक्शन की मदद से जोड़ें, ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे भी कंजक्शंस हैं, क्लासेस हैं जो पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव से बनते हैं। पार्टिसिपल से मुराद है जब वर्ब की 4th फॉर्म बन जाती है वी कॉल इट पार्टिसिपल, और जब जो है ना वो इन्फिनेटिव फॉर्म बनती है तो वी कॉल इट इन्फिनेटिव फॉर्म, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये जो रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, ये जो पार्ट है दिस इज़ जो है ना यहाँ पे ये पार्टिसिपल के तौर पे यूज़ हो रहा है। ये क्लास है अपनी गलती का एहसास होने के बाद जो है ना करते हुए ही स्टॉप्ड आर्ग्यूइंग। अब ही स्टॉप्ड आर्ग्यूइंग ये कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन अगर हम कहें कि रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, अपनी गलती का एहसास होने के बाद, अब ये अगर अकेला करेंगे ना, खाली अगर ये करेंगे दैन इट विल नॉट कैरी एनी सेंस। कि क्या मकसद ये कंप्लीट सेंस कैरी नहीं करेगा। अगर आप ये सिर्फ ये कहें कि उस गलती का एहसास होने के बाद, तो बस गलती का एहसास होने के बाद तो क्या मीन्स दिस इज द प्रॉब्लम विद द क्लॉज, ओके। सेंटेंस वुड गिव यू कंप्लीट सेंस बट क्लॉज कैंट, ठीक है। रियलाइजिंग इसके पास वर्ब भी मौजूद है, मिस्टेक इसके पास ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, इसके पास वर्ब ऑब्जेक्ट मौजूद है, बट स्टिल इट्स नॉट ए सेंटेंस बिकॉज इट डजंट हैव अ कंप्लीट सेंस। सो रियलाइजिंग हिज मिस्टेक या द सिचुएशंस कंपेल्ड हर टू विथड्रॉ फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू। To withdraw from her point of view,
ये जो है ना ये क्लॉज है। अब इसमें द सिचुएशन कंपेल्ड हर, ये इंडिपेंडेंट पार्ट है सेंटेंस का, लेकिन टू विथड्रॉ फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट पार्ट, और ये इन्फिनिटिव जो है ना वो वर्ब से बना है। तो क्लॉजेज जो होते हैं वो जो है ना वो पार्टिसिपल या इन्फिनिटिव की मदद से हम बना सकते हैं, टू विथड्रॉ फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब इसके अलावा अगर आप देखें कि हमारे यहाँ जो क्लासेस होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक ये क्लास है जो सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं। देखिए सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है कि इसका जो है ना वो एक पार्ट दूसरे पार्ट पर जो है ना वो डिपेंड करता है। तो व्हाट दे वांट इज़ ए डिलीश, आई थॉट यू अंडरस्टूड, ओके। यू अंडरस्टूड जो है ना ये जो है ना एक पार्ट है जो डिपेंड करता है अगले पार्ट के ऊपर। आई थॉट दैट यू अंडरस्टूड, ये दैट कंजक्शन है, उसके बाद जो है ना वो उसके साथ जो है ना वो जुड़ रहा है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लास वो होता है जो एक इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जुड़ता है, लेकिन उसमें इशू ये होता है कि दिस सबऑर्डिनेट क्लास वर्क्स एज ए पार्ट ऑफ अनदर क्लास एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आर एडवर्बल इन द मेन क्लास ऑफ द सेंटेंस, ओके। अब जो आई थॉट दैट यू अंडरस्टूड, ये देखिए पूरे का पूरा जो यू अंडरस्टूड है ना वो उस थॉट का बतौर ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। अब अगर ये पूरा अगर हम सेंटेंस को ट्रीट करें, आई थॉट दैट यू अंडरस्टूड, तो आई सब्जेक्ट है, थॉट वर्ब है, और दैट यू अंडरस्टूड ये उसका ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। व्हाट दे वांट इज़ डिलीशियस फूड, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो व्हाट दे वांट इज़ डिलीशियस फूड, ओके। यू विल फाइंड फास्ट फूड वेयर एवर यू गो, ओके। अब देखिए दैट यू अंडरस्टूड ये फंक्शन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस पहले सेंटेंस में। व्हाट दे वांट ये जो है ना पूरा एज ए फंक्शन करा एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, ओके। वेयर एवर यू गो दैट इज़ ए एडवर्बियल। मैं दोबारा इस को एक्सप्लेन करूँ कि ये जो सेंटेंस है, अब सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो पूरा एक सेंटेंस के अंदर बतौर ऑब्जेक्ट या बतौर सब्जेक्ट या बतौर एडवर्बियल के तौर पे भी काम करता है। अब इस सेंटेंस के अंदर के आई थॉट, ये देखें ना, आई इसका सब्जेक्ट है, थॉट वर्ब है, दैट यू अंडरस्टूड ये इसका पूरे का पूरा इस अगले पार्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। वैसे ये एक इंडिपेंडेंट जो है ना वो पार्ट है, लेकिन अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर दैट्स गोइंग टू बिकम इसका ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। व्हाट दे वांट इज़ ए डिलीशियस फूड, ओके। व्हाट दे वांट, अब ये व्हाट दे वांट जो है ना ये सब्जेक्ट है, जो उनको चाहिए, क्या चाहिए, इज़ डिलीशियस फूड, ओके। अब इसमें इज़ जो है ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, और डिलीशियस फूड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये सब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर इस पूरे सेंटेंस को देखें ना तो व्हाट दे वांट ये सब्जेक्ट है, इज़ डिलीशियस फूड इसका कॉम्प्लीमेंट है। और ये वो सेंटेंस है जिसमें सिर्फ प्रेडिकेट्स में से खाली एक कॉम्प्लीमेंट लेकर आए, और वो कॉम्प्लीमेंट क्या है, डिलीशियस फूड है। देखिए ये टेक्निकल सेंटेंसेस की जो टेक्निकलिटीज़ हैं। अब पहले सेंटेंस में आपने क्लास को ऑब्जेक्ट बनते देखा, दूसरे में आपने क्लास को सब्जेक्ट बनते देखा, और तीसरे में जो है ना हम देख रहे हैं जो है ना वेयर एवर यू विल फाइंड फास्ट फूड वेयर एवर यू गो। अब वेयर एवर यू गो जो है ना ये यहाँ पे एडवर्बियल का काम कर रहा है। एडवर्बियल जो पास्ट सेंटेंस में आता है तो हमें ये बताता है कि वो काम कैसे कर रहा है। तो जो सबऑर्डिनेट एक क्लास, ये सबऑर्डिनेट क्लास है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट भी बन सकता है, दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, या जो उसका कॉम्प्लीमेंट भी बन सकते हैं। कोऑर्डिनेट क्लास मैंने पहले दिन बताया था, कोऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेशन हमेशा इंडिपेंडेंट चीज़ों में होती है, तो ये दोनों पार्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, दिस कॉल कोऑर्डिनेट क्लास। और कोऑर्डिनेट क्लास दे आर ऑफ इक्वल रैंक्स, तो वो दोनों बराबर रैंक्स के होते हैं। विल यू कम टू मी और शुड आई कम टू यू। अब विल यू कम टू मी एक पार्ट है, शुड आई कम टू यू दूसरा पार्ट है, बोथ आर इंडिपेंडेंट। और ये इसमें आर जो है, ये आर जो यहाँ पे काम कर रहा है, ये इसके दरम्यान में लिंक का पैदा कर रहा है, या इसके अंदर जॉइंट पैदा कर रहा है। तो ये दो इक्वल रैंक के क्लॉजेज होते हैं, और ये आपस में मिलकर एक जो है ना वो आला जो है मफ़हूम या मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ इट इज़। या दूसरा सेंटेंस देखें, इट इज़ सनी टुडे, देयर इज़ अ बिट क्लाउडी। अब इट इज़ सनी टुडे ये एक सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। देयर इज़ अ बिट क्लाउडी ये दूसरा पार्ट है सेंटेंस का, और ये भी इंडिपेंडेंट है। अब देखिए इक्वल रैंक के दो क्लासेस को ये मिला रहे हैं, कर रहे हैं, दरमियान में जो एंड कंजक्शन है ये इन दोनों को जो ना वो मिलाने की कोशिश कर रहा है।
तो कोऑर्डिनेट क्लास जो होते हैं ये इक्वल रैंक के होते हैं, जिनके दरमियान में हम कंजक्शन रखकर इनको मिलाते हैं, और इनको जो कंजक्शन भी मिलाते हैं उन कंजक्शंस को भी हम कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं। वी कॉल देम कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। मेन क्लास जो होते हैं, मेन क्लास जो सेंटेंस के होते हैं, जिसके मैंने जिस तरह पहले बता दिया कि जिस तरीके से सबऑर्डिनेट क्लास जो है जिसके साथ मिलकर काम करते हैं, एक मेन क्लास होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। फिर हम उसी सेंटेंस पे चले जाएंगे। हाउ शी वर्क्स डजंट मैटर। द सबऑर्डिनेट क्लास हाउ शी वर्क्स डजंट मैटर। अब देखिए हाउ शी वर्क्स ये जो है ना वो डजंट मैटर फंक्शंस लाइक द सब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लास। मिसाल के तौर पे ये जो ना या हाउ शी वर्क्स डजंट मैटर। ओके, ये पूरा जो क्लास है ये यहाँ पे जो है ना मेन क्लास के लिए जो है ना एक सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, जिस तरीके से है जो है ना वो। दूसरा एक आई थॉट दैट यू अंडरस्टूड। इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें तो सबऑर्डिनेट क्लास दैट यू अंडरस्टूड जो है ना ये पूरे का पूरा उसका ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। यू विल फाइंड फास्ट फूड वेयर एवर यू गो। ये वेयर एवर यू गो ये सबऑर्डिनेट क्लास है, और ये पूरा जो सेंटेंस है दैट इज़ वेन एवर यू गो वेन यू विल फाइंड फास्ट फूड, ये मेन क्लास है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये हर जगह अपना मतलब इंटेक्ट रखेगा। वेयर एवर यू गो दैट इज़ ए सबऑर्डिनेट क्लास दैट विल कनेक्ट इट। सो इन दिस सेंस जो मेन क्लास होते हैं वो अपना मफ़हूम और मतलब सेम रखते हैं, हर जगह पर अपना मतलब सेम रखते हैं। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लास जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उस मेन क्लास के साथ सबऑर्डिनेट करके उसका पार्ट बनकर आते हैं और उसको हेल्प करते हैं, और अगर उससे अलहदा हो जाए तो फिर अपना मतलब जो है ना वो खो बैठते हैं, लाइक दैट। सो देन वी कम टू दिस सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास अपनी कंप्लीट मीनिंग होती है, और ये हर जगह पर अपना सेंस मेंटेन रखता है। फिर हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़े थे। पार्ट ऑफ सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। किसी भी सेंटेंस को जब हम डील करते हैं तो हम उसको इस सेंस में डील करते हैं कि सेंटेंस बेसिकली एज ए टू पार्ट। ओके, अब सेंटेंस हैज़ ए टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर प्रेडिकेट्स में से ये जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में से अगेन जो है ना आपके पास खाली वर्ब भी निकल सकता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी निकल सकता है, एडवर्बियल भी निकल सकता है, और कॉम्प्लीमेंट भी। वसीम लाफ्स, इसमें वसीम सब्जेक्ट है, लाफ प्रेडिकेट है, और जो लाफ अगर देखा जाए तो प्रेडिकेट में वर्ब की स्टेट रखता है। क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की इसको ज़रूरत नहीं है, तो इसमें वर्ब में आपके पास सिर्फ जो है ना वो प्रेडिकेट में सिर्फ अकेला वर्ब मिला है। बी, कैथरीन रिंग्स ए शर्ट। ओके, कैथरीन इज़ अ सब्जेक्ट एंड रिंग इज़ अ वर्ब एंड शर्ट इज़ अ ऑब्जेक्ट। ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसमें वर्ब भी आया है रिंग, और शर्ट का है जो है उसका ऑब्जेक्ट है। रिंग का मतलब मैंने बताया था, रिंग का मतलब होता है निचोड़ना। जब कोई कपड़े को धोने के बाद हम निचोड़ते हैं, वी यूज़ रिंग। सो कैथरीन रिंग्स ए शर्ट, गुड। दिस रिंग इज़ वर्ब एंड शर्ट इज़ ऑब्जेक्ट। फिर माई फादर इज़ ए डॉक्टर। माई फादर इज़ ए सब्जेक्ट, इज़ ए डॉक्टर इज़ प्रेडिकेट। और ये जो पूरे का पूरा इज़ ए डॉक्टर इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में क्या करता है, से कॉम्प्लीमेंट का काम है सेंटेंस को कंप्लीट करना। दैट्स हम बहुत से जो मैंने पिछले भी क्लास में डिस्कस किया था, जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं कि सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अगर इस डेफिनेशंस को आप लेकर चलोगे तो आगे चल के मायूस हो जाओगे। द रीज़न इज़ दैट ऑल सेंटेंस डोंट कैरी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब ये जो सेंटेंस है ना कि माई फादर इज़ ए डॉक्टर, इसमें देखिए वर्ब और ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो अगर वो डेफिनेशन आप रखोगे ना सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की सेंटेंस के लिए, तो फिर वो डेफिनेशन तमाम सेंटेंस को क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर सेंटेंस विल बी दैट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को फर्दर आप क्लासीफाई करें, देन इट कुड बी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। अब ये पूरा सेंटेंस का जो पार्ट है दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। आप यूँ कह दें कि शी इज़ माई सिस्टर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। ही इज़ अ डॉक्टर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, ठीक है ना, तो इन अ हॉस्पिटल वुड बी जस्ट ए काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेंटेंस, एंड वर्क इज़ अ वर्ब।
तो इस तरीके से ये सेंटेंस को सिंपल कंप्लीट करता है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि शी इज़ सिक, ये इज़ सिक जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है सेंटेंस का, सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। शी इज़ ओके, आई एम हैप्पी, दे आर होपलेस। तो ये सब जो सेंटेंस में यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मैं कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर रहा हूँ, इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट का कोई भी अमल दखल नहीं है। तो इस तरीके से सेंटेंस हैज़ दीज बोथ थिंग्स। मूव फॉरवर्ड। अब असलम राइट्स लेटर, ये वो सेंटेंस था जिसको हमने पिछली मरतबा एनालाइज किया था। इसमें सब्जेक्ट भी है और पूरा राइट्स अ लेटर टू हिज ब्रदर मंथली, दैट कंप्लीट इज़ ऑब्जेक्ट और कंप्लीट इज़ ए प्रेडिकेट। फिर इस प्रेडिकेट में से अगर देखें तो राइट वर्ब निकला है, लेटर ऑब्जेक्ट है और टू हिज ब्रदर कॉम्प्लीमेंट, मंथली एडवर्बियल है, ये बता रहा है कि काम कैसे हो रहा है। तो अब ये सेंटेंस देखें, इसमें आपको प्रेडिकेट में आपके पास यू हैव अ वर्ब, यू हैव ऑब्जेक्ट, यू हैव कॉम्प्लीमेंट एंड यू हैव एडवर्बियल। इस प्रेडिकेट में आपको चारों कंपोनेंट मिले हैं। जहाँ तक इम्परेटिव सेंटेंसेस की बात होती है, शट द डोर, आई एक्सप्लेन इट इन माई लास्ट क्लास कि ये सिंपल जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। व्हेन यू से शट द डोर, तो शट इज़ वर्ब, डोर ऑब्जेक्ट है और इसका जो ये क्योंकि वर्ब और ऑब्जेक्ट हमेशा प्रेडिकेट से निकलते हैं, बाकी इसका सब्जेक्ट है ही नहीं। तो ये जो असल सेंटेंस होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें हम जो है ना हमेशा यू इनका सब्जेक्ट होता है। जो बोला नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है, क्योंकि हम आर्डर तब देते हैं जब बंदा हमारे सामने होता है। जब हम कहते हैं शट द डोर, तो वी मीन यू शट द डोर। तो यू शट द डोर का मतलब ये कि दैट इज़ वे वी जस्ट यूज दिस। अब ये वो सेंटेंस है जिसको हमने लास्ट क्लास में एनालाइज किया था और फिर मैंने आपको बताया था कि जब हम एडवांस लेवल पे जाते हैं तो आप देखें कि एक पार्ट दूसरे सेंटेंस का पार्ट जो है ना वो बेतौर ऑब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर रहा है। ही थॉट दैट दे हैड अंडरस्टूड हिम, ये पूरा सेंटेंस है, ही इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। थॉट दैट दे हैड अंडरस्टूड हिम, ये पूरी का पूरा प्रेडिकेट है। अब इस पूरे प्रेडिकेट को दोबारा एनालाइज करें तो इसके थॉट क्या है, थॉट इज़ अ वर्ब, और दैट दे हैड अंडरस्टूड हिम ये पूरी का पूरा ऑब्जेक्ट है। पूरा इस सेंटेंस के लिए ये पूरा ऑब्जेक्ट बना है। वैसे अगर इस दे को देखें तो दे खुद सब्जेक्ट है, हैड अंडरस्टूड जो है इसका वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ से हम इसको अलहदा टैकल करें तो ये खुद एक कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे काम कर सकता है, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है। लेकिन यहाँ पे ये पूरी का पूरा ये पार्ट जो है ना इस सेंटेंस के इस पार्ट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। वसीम grew happier when his friend arrived, ओके। अब when his friend arrived, ये देखिए पूरा जो है ना वो अगर देखा जाए तो when जो है ना इसमें प्रेपोजिशन का जो है ना वो कंजक्शन का काम कर रहा है, his friend सब्जेक्ट है, arrived वर्ब है। तो ये पूरा जो है ना एक अलहदा सेंटेंस भी है अपनी जगह पर। लेकिन इस सेंटेंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इस सेंटेंस के लिए ये जो पार्ट है when his friend arrived, ये एडवर्बियल का काम कर रहा है, जो बता रहा है कि वो काम कैसे हो रहा है। वो खुश तो हुआ, लेकिन कैसे हुआ, कब हुआ, when वसीम grew happier when his friends arrived। तो इसी तरीके से एक सेंटेंस, पूरा सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के लिए खाली एडवर्बल या ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो जब हम एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये सेंटेंस की बात सिर्फ सेंटेंस तक नहीं रखती, सेंटेंस दूसरे सेंटेंस तक भी सरायत करके चला जाता है। Well, that was regarding sentence structure. अब हम जा रहे हैं, we are just going to talk about the classification of sentence. How do we classify them? तो पहले वो सेंटेंस होते हैं जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर आप कोई भी जो ना चीज़ डिक्लेयर करें तो दिस कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसके दो टाइप होते हैं, दे आर अफर्मेटिव सेंटेंस एंड देन दे आर नेगेटिव सेंटेंस। जब हम कोई डिक्लेरेशन करते हैं, कोई अनाउंसमेंट करते हैं, कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेरेशन दो किस्म की होती हैं। या तो आप वो काम कर रहे हैं या तो वो आप काम नहीं कर रहे। इफ़ यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग दैट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग दैट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव वो होते हैं जिसमें कोई भी काम होता है जिसको आप पॉजिटिवली बता रहे होते हैं कि हाँ मैं पढ़ता हूँ, ये लिखता है, वो जाता है, दैट ऑल आर पॉजिटिव थिंग्स, दिस इज अफर्मेशन। वसीम राइट्स अ लेटर, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ्स, ये जो है ना वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अगर नेगेटिव में जाएंगे तो इसमें आप उस चीज़ को इनकार करेंगे कि असलम डजंट राइट अ लेटर,
व्हेन यू से असलम डजंट राइट अ लेटर, तो ये डजंट जो है ना दैट इज़ अ नेगेटिव। अगर आप कह रहे हैं कि असलम राइट्स अ लेटर, दैट्स अ पॉजिटिव अफर्मेटिव। इफ़ यू से असलम डजंट राइट अ लेटर, दिस इज नेगेटिव। ये दोनों सेंटेंसेस जो है ना अफर्मेटिव या नेगेटिव, ये ओवरऑल डिक्लेरेटिव सेंटेंस का पार्ट कहलाते हैं। बिकॉज डिक्लेरेशन मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू डिक्लेयर समथिंग, आप किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं, आप डिक्लेरेशन या हाँ में होती है या ना में होती है। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ कंपैशन इन ह्यूमन लाइफ। इंसान की ज़िंदगी में जो कंपैशन है, जो हमदर्दी है, इसका कोई नैमल बदल नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मीन्स नैमल बदल। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैशन इन ह्यूमन लाइफ। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सवाल करते हैं, दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, व्हाट इज़ योर नेम, विल यू अकम्पनी मी टू द स्टेशन। तो दो तरीके से आप सवाल दो तरीके से बनाए जाते हैं, ये जहन में रखा करें। अक्सर जब आप सवाल बनाते हैं तो एक और चीज़ हमसे जो है ना वो होती है, वो ये होती है कि जब स्टूडेंट्स सवाल बनाते हैं तो वो, अब एक तो सवाल हम बनाते हैं जो WH की मदद से बनाते हैं, व्हेन यू से व्हाट इज़ योर नेम, ओके, विल यू। और दूसरे जो हम सवाल बनाते हैं जब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं तो सवाल बन जाते हैं। सपोज़ आप कहते हैं कि विल यू कम टुमारो, या विल यू अकम्पनी मी टू द स्टेशन, क्या आप मेरे साथ स्टेशन चलेंगे। विल यू कम टुमारो, क्या कल आप आएंगे। डज शी प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से आप जो फाइनाइट वर्ब हैं, डू, डज, इज, एम, आर, विल, शैल, ठीक है, इनको इस्तेमाल करके हम जो है ना एक सवालिया सेंटेंस बनाते हैं, इनको आगे रख कर हम बनाते हैं। दूसरे जो सवालिया सेंटेंसेस बनते हैं वो हम बनाते हैं WH फैमिली के साथ। तो WH फैमिली के साथ जब आप सवाल बनाते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखा करें, जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि अक्सर देखें ना जब लोग कह देते हैं कि वेयर यू प्ले, ओके, अब देखें इस सेंटेंस का फ़र्क देखें, वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ खेलते हो। अगर हम इसको ये कहें ना वेयर यू प्ले, तो इसका मतलब है वेयर यू प्ले, जहाँ आप खेलते हो। ये सेंटेंस, दूसरा जो सेंटेंस है ना वेयर यू प्ले, ये अफर्मेटिव है। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ आप खेलते हो। या हाउ 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 विल यू प्ले, अगर हम लिखें कि हाउ विल यू प्ले, आप कैसे खेलेंगे, ये सवाल है। इसका जवाब भी ये भी हो सकता है हाउ यू विल प्ले, जिस तरीके से आप खेलेंगे। तो अब देखिए कि दिस इज़ सिंपल, हाउ यू विल प्ले, जैसे आप खेलोगे। तो अब इसमें देखें कि जो सेंटेंस यूज़ हो रहा है दैट्स रियली, जो दूसरा सेंटेंस है दैट्स सिंपल अफर्मेटिव, इट इज़ सिंपल अफर्मेटिव। और पहला सेंटेंस है कि हाउ विल यू प्ले, आप कैसे खेलोगे। तो एक बात जहन में रखा करें कि जब भी आप WH फैमिली यूज़ करते हैं, चाहे वेयर, चाहे वेन, चाहे हाउ, ठीक है, मिसाल के तौर पे वेयर विल यू प्ले, आप कहाँ खेलोगे, वेयर विल यू प्ले। अब अगर हम ये लिख दें कि वेयर यू विल प्ले, वेयर यू विल प्ले, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जहाँ आप खेलोगे। वेयर विल यू प्ले, कहाँ खेलोगे, वेयर यू विल प्ले, जहाँ आप खेलोगे। हाउ विल यू प्ले, आप कैसे खेलोगे, हाउ यू विल प्ले, जैसे आप खेलोगे। वेयर डू यू प्ले, ठीक है, सो वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ आप खेलते हो। वेयर यू प्ले, जहाँ आप खेलते हो। तो इस तरीके से देखें ना, अब ये जो दूसरा सेंटेंस है ये सिंपल रिपीटेशन हो रही है टेंसेस की, उसको बेहतर है हम वेयर की जगह पर वेन कर दें। वेन विल यू प्ले, वेन यू विल प्ले, जब आप खेलोगे। तो ग्रेट। अब देखिए वेन विल यू प्ले, आप कब खेलोगे, वेन यू विल प्ले, जब आप खेलोगे। तो दूसरे वाला जो सेंटेंस है ना, देखें ये सवाल नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। तो जब आपने क्वेश्चन बनाना हो तो ये जो WH फैमिली है, WH के बाद फ़ौरन आप, जिसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो टेंस वर्ब होते हैं, डू, डज, इज, एम, और, वाज, विल, शेल, ये जो फाइनाइट वर्ब है ना, इन WH फैमिली के बाद फ़ौरन फाइनाइट वर्ब को रखा करें, फिर जो है ना क्वेश्चन मार्क दिया करें। तो दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो दो तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस WH फैमिली या विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब की मैंने आपको मिसाल बताई कि आप उसको उसकी मदद से जो है ना बना सकते हो कि विल यू का अकम्पनी मी टुमारो, और इज़ ही ओके, इज़ ही ओके। तो ये जो है ना दीज आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब, इसकी मदद से हम जो है ना बना सकते हैं। तो पहले जो इसकी वर्ब थी अपना डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं,
जो जिससे आपको किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करें. इट कुड बी अफर्मेटिव. अफर्मेटिव आर द सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम जो है सेंटेंस को पॉजिटिवली बताते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं तो यू यूज़ इट पॉजिटिवली. जब आप नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं तो आप इनकार कर देते हैं कि दे डोंट प्ले, शी डजंट कम. इंटेरोगेटिव जो होते हैं उसमें हम सवाल करते हैं कि कोई भी जो है ना आप क्वेश्चन रेज करते हैं. व्हाट इज़ योर नेम, विल यू अकम्पनी मी टुमारो. तो उसमें हमने ये कहा था कि सवाल बनाने के लिए आपके पास दो तरीके कार हैं. या तो आप WH का सहारा लें या तो आप जो है हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब का सहारा लें. अगर आप WH का सहारा ले रहे हैं तो WH के बाद फ़ौरन जो है ना उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब ज़रूर लगाएं. ये ना कहें कि वेयर यू प्ले, आप कहें वेयर डू यू प्ले. वेयर विल यू प्ले, वेयर यू विल प्ले कहोगे तो फिर हो जाएगा जहाँ आप खेलते हो. तो ये आप जहन में रखें कि ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, ये इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है. सिर्फ इस सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब रखने से ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है. अगर यही पीछे चला जाए तो फिर जो है ना वो सब्जेक्ट के बाद आए तो दैट इज़ नॉट. ये अगर ये विल जो है ना यू के बाद आ रहा है ना तो फिर ये सवाल नहीं बनेगा. सवाल बनाने के लिए विल को इधर रखना पड़ेगा. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस. फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी भी कोई भी सडन एक्सक्लेमेशंस होती है, हैरानी होती है, सडन फीलिंग्स होती है, वी यूज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. लाइक सडन फीलिंग्स आर इमोशंस. कोई इंसान की सडन इमोशंस हैं, फीलिंग्स आर डिज़ायर्स. अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हम दो तरीक़ों से यूज़ करते हैं. एक तो वो वर्ड हैं जिसमें हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं. एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स हैं, मिसाल के तौर पे खुशी के वर्ड्स हैं, हरा. एक्साइटमेंट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं yippee. सैडनेस, उदास के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं alas. फैन के लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं ouch. सरप्राइज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं wow. या जो है ना वो थकावट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं few, I am tired. So these are different words. When you are using these exclamatory words तो उसमें आप क्या करें कि इसके बाद फ़ौरन exclamatory words के बाद एक्सक्लेमेशन साइन दे और फिर कैपिटल यूज यहाँ पे जो है नेक्स्ट लेटर को कैपिटल करें. पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें कैपिटल करना पड़ता है. पहली बात, हमेशा फुल स्टॉप के बाद कैपिटल होता है. क्वेश्चन मार्क के बाद हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. एक्सक्लेमेशन साइन के बाद हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो रहा हो तो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. और प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. प्रॉपर नाउन मिसाल के तौर पे हैदराबाद, पाकिस्तान, अमेरिका. और प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं. अब जापान है ना, इसका एडजेक्टिव जापानीज हो सकता है. अमेरिका, उसका एडजेक्टिव अमेरिकन बनेगा, अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव है. पाकिस्तान ये नाउन है, पाकिस्तानी, दैट कुड बी प्रॉपर एडजेक्टिव. तो ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं ये भी हमेशा प्रॉपर नाउन की तरह कैपिटल लिखे जाते हैं. तो एक बात का जहन में रखा करें, जब भी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं तो इसके बाद जब आप ये एक्सक्लेमेशन साइन देते हैं यू मस्ट पुट मेक इट अ कैपिटल. या सपोज वी आर सेइंग दिस हरा या ओ ही इज़ डेड, yippee ग्रैंडफादर इज़ कमिंग. अच्छा, दूसरा इसका ये भी तरीक़ेकार है कि अगर आप इन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद यहाँ पे कॉमा दे दें तो सेंटेंस के आखिर में आकर एक्सक्लेमेशन साइन, दोनों आपके पास है. अगर यहाँ पे आपने हरा के बाद कामा देनी है तो मैच के बाद एक्सक्लेमेशन साइन आएगा. अगर हरा के बाद आपने एक्सक्लेमेटरी साइन दिया है तो फिर W कैपिटल करना पड़ेगा और यहाँ पे फुल स्टॉप करना पड़ेगा. चूँकि यहाँ पे कामा है इसलिए ग्रैंडफादर का G कैपिटल नहीं करना. लेकिन अगर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन डालोगे तो ग्रैंडफादर का G कैपिटल करना पड़ेगा. दैट्स अ वे रूल टू मूव फॉरवर्ड. एंड देन दिस ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम किसी के लिए दुआ या बद्दुआ मांगते हैं. दिस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस. जिस तरीके से कहा जाता है कि मे गॉड ब्लेस यू, हो सकता है अल्लाह आप पे रहम करे, ये दुआ है. या मे गॉड ब्लैक इन हर फेस या हिज फेस, अल्लाह करे उसका मुंह जो है ना वो इस तरह हो. सो मे गॉड ब्लैक इन हिज हर फेस. किसी को दुआ या बद्दुआ देनी हो वी यूज दिस वर्ड for these expression to strong wish or pray or curse. May you die, may you live long, may God bless you.
लेकिन इसमें भी ख्याल किया करें कि मे को आगे रखा करें। देखिए मे जो ये है ना, मे के 4 मुतवक्का इस्तेमाल होते हैं। एक मे का इस्तेमाल होता है परमिशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू से मे आई कम इन, आप परमिशन ले रहे हैं। यू मे, आप परमिशन दे रहे हैं। मे आई टेक योर पेन, आप परमिशन मांग रहे हैं। यू मे टेक इट, आप इजाज़त दे रहे हैं। तो मे इजाज़त मांगने और देने के लिए। दूसरा मे का इस्तेमाल होता है दैट इज़ पॉसिबिलिटी के लिए, इम्कान के लिए, किसी भी चीज़ के होने के इम्कान वी यूज़ मे। डॉक्टर मे कम, हो सकता है डॉक्टर आए, या इट्स मे रेन टुडे, हो सकता है बारिश हो। तो जब आप दुआ करते हो तो ये ना कहा करो कि गॉड मे ब्लेस यू। जब गॉड के बाद मे आएगा ना तो ये पॉसिबिलिटी और इम्कान बन जाएगा। डॉक्टर मे कम, हो सकता है डॉक्टर आ जाए। गॉड मे ब्लेस यू, इसका मतलब ये तो हो सकता है खुदा आप पे रहम करे, हो सकता है ना करे, दैट्स इज पॉसिबिलिटी। लेकिन जब दुआ देनी होती है तो मे को आगे रखो, मे गॉड ब्लेस यू, दैट इज appropriate way, may God blacken his face। ओके, एम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम आर्डर या कमांड देते हैं। शट द डोर, प्लीज गिव मी अ पेन, कम हेयर, स्टैंड अप, दिस कैरी a strong sentence, command, a request। Then there are assertive sentence. Assertive sentences, they express opinion or desires strongly and with confidence so that people take notice. Here this is assertive sentence, okay, when you show your desires, your opinion, but strongly with the confidence. Suppose you should try and be more assertive. You should try. This is assertive sentence. You had better work hard if you want to shine. आपके लिए अच्छा होगा कि मेहनत करो अगर आपको कामयाब होना है। So you had better work hard if you want to shine. This is assertive. About the firmament of success. अगर कामयाबी के आसमानों पे आप चमकना चाहते हो, अबाउट द फर्मामेंट ऑफ सक्सेस, फर्मामेंट आसमानों के, फर्मामेंट ऑफ सक्सेस, अगर कामयाबी के आसमानों के ऊपर आप चमकना चाहते हो, यू वांट टू शाइन, यू हैड बेटर वर्क हार्ड। ओके, सो दिस यू हैड बेटर वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू शाइन अबाउट द फर्मामेंट ऑफ द सक्सेस, कामयाबी के उफक के ऊपर अगर आप चमकना चाहते हो तो आपको लिए ज़रूरी है कि आप सख्त मेहनत करो। सो यू हैड बेटर, यू शुड, दीज आर असर्टिव सेंटेंस जिसमें आप अपनी स्ट्रांग ओपिनियन को, डिज़ायर्स को जो है ना वो कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना बोल रहे हो, सो द पीपल को नो इट्स ओके। देन दिस लास्ट क्लियर सेंटेंस, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेंटेंस इन विच स्पेशल एम्फेसिस इज गिवन। अच्छा, ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें आप मखसूस किस्म का जब हम सेंटेंस उसके ऊपर जोर भरते हैं, एम्फेसिस करते हैं, वी यूज दिस टर्म collapse sentence. This is used especially for special emphasis, okay, given to one of its parts that may be subject or object by using the structure with it or what। ये जो sentences होते हैं ये या तो it से शुरू होते हैं या what से शुरू होते हैं, और ये तब हम देते हैं जब हम किसी चीज़ पे ज़ोर दे रहे होते हैं। ज़्यादा ज़ोर देने के लिए, ज़्यादा फोकस करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। एंड वी यूज़ अभी कहते हैं ना, ये आप क्लेफ सेंटेंस को यूज़ समझे जब आप कहते हैं ये पेरेंट्स ही तो हैं जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील करते हैं, तो ये जो आप कहते हैं ये पेरेंट्स ही तो हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसी में हम यूज़ करते हैं कि इट इज़ पेरेंट्स। अच्छा, मज़े वाली बात है, इसको हम ये रेफ़र क्या करें इट के साथ, और भले वो प्लूरल हो, इट इज़ पेरेंट्स, इट इज़ टीचर्स, इट इज़ टीचर्स। अब देखिए टीचर्स, ये टीचर असातिज़ा ही तो हैं जो आपकी ज़िंदगी को चेंज करते हैं। इट इज़ टीचर्स हु चेंज द लाइफ ऑफ पीपल, या इट इज़ लीडर्स हु बिंग चेंज इन योर लाइफ। ओके, इट इज़ पेरेंट्स। तो देखिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं इट इज़ पेरेंट्स, वी आर यूजिंग प्लूरल, आगे इट लगा हुआ है और पीछे जो है ना भले नाउन में जो है ना वो प्लूरल भी हो जाए ना, इट्स नॉट। आप सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं कि इट इज़ डॉक्टर, इट इज़ डॉक्टर हु सेव्स अस। तो इस सेंस के अंदर, लेकिन इसमें इट लगाकर हम उस सेंटेंस को एम्फेसाइज करते हैं, उसी पे जोर भर रहे होते हैं, या वॉट लगाकर भी हम इस सेंटेंस को वी कैन यूज़ कर सकते हैं। इन दिस सेंस इट इज़ टीचर्स हु गारंटी द फ्यूचर्स ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच मिस्टर फैलाज, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट। It is teachers who guarantee the futures of students. It is teachers, ये टीचर ही तो होता है जो बच्चों के फ्यूचर की गारंटी बनता है। इन दैट सेंस व्हाट आई नीड इज़ योर ट्रस्ट, मुझे जो चाहिए ना दैट्स योर ट्रस्ट। अब देखिए यहाँ पे व्हाट आई नीड,
ये जो वॉच है ना, दैट इज़ ये जो है ना वो क्लेफ्ट सेंटेंस बन गया फिर। व्हाट आई नीड, अब देखिए इस पे किस चीज़ पे जोर पड़ रहा है, व्हाट आई नीड इज़ योर ट्रस्ट, मुझे जो चीज़ चाहिए वो आपका ट्रस्ट चाहिए। ये जो सेंटेंस हैं इट और व्हाट से शुरू होने वाले, दिस सेंटेंस इज कॉल्ड ए क्लेफ्ट सेंटेंस एंड इट इज़ यूज्ड टू एम्फसाइज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इन ऑर्डर टू गिव इट इज स्पेसिफिक मीनिंग। क्योंकि देखें ना, ये नहीं है कि सिर्फ ज़बान का मतलब जो है ना वो सेंटेंस में यूज़ होता है। मैं आप देखें, हम मुख्तलिफ पार्ट्स पे जब हम जोर देते हैं तो उससे भी मतलब चेंज हो जाता है। जिस तरीके से देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई हेट यू, अब अगर आप देखें इसके हम मुख्तलिफ पार्ट्स पे जब हम ज़ोर देंगे तो मतलब बिल्कुल चेंज होता चला जाएगा। ये लैंग्वेज की अपनी एक जो है ना वो आप स्टेज से भी मतलब चेंज होता है, सिर्फ अल्फाजों तक मतलब नहीं होता है। सेंटेंस जो है ना वो जो है ना वो इसीलिए हम कहते हैं ना सुपर लिंग्विस्टिक्स में हम एक चीज़ आगे से आगे ये भी पढ़ते हैं कि सुप्रा सेगमेंटल स्टडी ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि जब हम प्रोसोडी में जाते हैं तो उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि वर्ड की जो मीनिंग है ना वो सिर्फ और सिर्फ उस वर्ड तक नहीं रहती, उससे भी बाहर निकल कर जो है ना वो मतलब कैरी करती है। क्योंकि आपके जो लैंग्वेज के अंदर जो मफ़हूम है ना वो सिर्फ वर्ड तक महदूद नहीं है, क्योंकि उसकी जो अदायगी है, जो साउंड है वो भी चेंज उसके मतलब को चेंज कर देता है। अब ये जो रेड पार्ट ऑफ सेंटेंस पे ज़ोर देकर पढ़ें आपके सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे आई हेट यू, इसमें जब आई पे आप फोकस कर रहे हो ना तो ये हो रहा है कि आइज मैं नफ़रत करता हूँ आपसे, मतलब और है आई हेट यू, मैं नफ़रत करता हूँ आपसे। इस पे स्ट्रेस किस पे आ रहा है? नफ़रत पे। आई हेट यू, इस पे ज़ोर किस पे आ रहा है? यू पे। देखें आप इनमें से जब जिस पे स्ट्रेस करेंगे मीनिंग चेंज हो जाएगी। दैट इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इट मैटर्स अ लॉट। तो सिर्फ जो है ना वो पता नहीं मुझे कोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो उसने कहा था ना अखना विच जेड़ा अड़िया इश्क दी चाड़ी मूर न चढ़िया। So we don't get baffled with the words. Yes, exactly. That is the root of the language. But beyond words and sentences, the meaning is there, and that part we call the supra-segmental study of a language. के मतलब जो है ना वो इनसे भी सेगमेंट्स इन जुज से भी ज़्यादा जो है ना वो आगे निकल जाता है। बहरहाल हम इसको ज़्यादा फ़िलोसॉफिकल नहीं करेंगे, लेट इट मेक इट सिंपल। तो इस तरीके से हमने सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़े। अब हम सेंटेंसेस को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। ऊपर तो हमने मीनिंग के एतबार से किया था, अभी जब हम लिखते हैं तो स्ट्रक्चर से एतबार से इसको क्लासीफाई करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो आप सिंपल सेंटेंस कहाँ यूज़ करेंगे, कम्प्लेक्स सेंटेंस कहाँ यूज़ करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो सेंटेंस होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है, दैट कंटेन्स वन फाइनाइट वर्ब एंड देयरफॉर वन क्लॉज। इसके अंदर एक क्लॉज होता है। इट एक्सप्रेसेस वन मैन आइडिया, ये एक आइडिया कैरी करता है। दस इट हैज़ वन मैन क्लॉज ओनली विच मे हैव वर्ड्स आर फ्रेज मॉडिफायर एडजेक्टिव्स आर एडवर्ब्स आर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा सेंटेंस है। माई मदर वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान, ये एक सिंपल सेंटेंस है। द होली कुरान गाइड्स मैनकाइंड, ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसके अंदर जो है ना वो एक सब्जेक्ट और उसके एक मेन वर्ब है और इसी के अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब का हमने सारा लिया है। बाकी जो उसके अंदर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको जो मॉडिफायर के तौर पे उसमें एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकते हैं, एडवर्ब भी यूज़ हो सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी यूज़ हो सकते हैं जो उसको जो दे आर गोइंग टू कराची। तो ये सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? एक्सप्रेसेस टू आर मोर मैन आइडियाज़। इसमें दो आइडियाज़ होते हैं, दो टू आर मोर आइडियाज़ आर मोर इंडिपेंडेंट आर मैन क्लॉज, या उसमें दो मैन आइडियाज़ होते हैं या दो से ज़्यादा मैन और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इट हैज़ मोर देन वन फाइनाइट वर्ब, और इसमें फाइनाइट वर्ब भी एक से ज़्यादा होगा। एंड मोर देन वन क्लास, और एक क्लास से भी इसमें क्लॉज भी ज़्यादा होंगे। ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शन, और इसको हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जोड़ेंगे। देखिए चूँकि ये इंडिपेंडेंट हैं, दो इसके अंदर फाइनाइट वर्ब यूज़ हो रहे हैं, तो इसको हम जो है ना कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जोड़ेंगे जो इन दोनों को इक्वल रैंक के बराबर उनको
जो है ना वो कंबाइन करेगा। कंपाउंड सेंटेंस कैन बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर सिंपल सेंटेंस। अगर इसको आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दरमियान से जो कंजक्शन है, जो इनको जोड़ रहा है, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, उसको हटाएं, सिंपल में फुल स्टॉप रख लें। दैट विल बी दिस विल मेक इट ए सिंपल क्लास। ओके, यार यू आर मिसिंग prosody. Don't worry, okay, very soon we will be back in university and we would enjoy it. My mother was born in Pakistan but she came to England as a small girl. अब देखिए ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। इसका पहला पार्ट है माई मदर वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान, ये एक सेंटेंस है। शी केम टू इंग्लैंड एज ए स्मॉल गर्ल, शी केम टू इंग्लैंड एज ए स्मॉल गर्ल, ये इसका दूसरा पार्ट है और ये दोनों इक्वल है, इंडिपेंडेंट है। और इसको जो ज्वाइंट करा ये बट ये लगा रहा है, बट कंजक्शन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कामा यूज़ करना चाहें तो यू कैन यूज़ इट, क्योंकि यहाँ पे अलहदा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है तो यहाँ पे हम जो है ना इसको कामा दे सकते हैं। वी कैन पुट कामा हेयर। सो दिस विल बी अ कंपाउंड सेंटेंस जिसके अंदर हम दो पार्ट्स इंडिपेंडेंट क्लास को या दो जो है ना वो जिसमें दो फाइनाइट वर्ब है उनको हम जो है ना वो लिंक कर रहे होते हैं दरमियान में कंजक्शन के साथ। अगर इसको आप ब्रेक करना चाहें सिंपल सेंटेंस में तो ये कॉमा हटाएं, यहाँ पे फुल स्टॉप हटाएं, कंजक्शन हटाएं, एस सी का एस कैपिटल करें, it will turn to become a two simple sentence. I am going to Multan today and I shall return tomorrow. I am going to Multan today is a one sentence. This is a one simple sentence. And I shall return tomorrow. That is another independent part of equal rank. So these two part of sentences they are combined with the help of this conjunction. And जिस तरह ऊपर हमने बट यूज़ किया था, बट भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, एंड दे आर यूज्ड एज ए कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड। तो इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ देम लाइक दिस। अगर इसको आपने सिंपल बनाना है तो टुडे के बाद फुल स्टॉप करके एंड को हटाएं और देन आई शैल रिटर्न टुमारो, ये दो सिंपल सेंटेंस बन जाएंगे। तो यू कैन ब्रेक दी टू सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग दिस। ओके, नाउ कम टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? हैज़ वन इंडिपेंडेंट आर प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहली बात तो ये देखें, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज है और एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। द इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया एंड रिमेन्स मीनिंगफुल इवन इफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब मफहूम कंप्लीट होगा, जो डिपेंडेंट होगा उसका मतलब मफहूम कंप्लीट नहीं होगा। द डिपेंडेंट आर सबऑर्डिनेट क्लॉज आर मीनिंगफुल ओनली इफ द मीनिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज इज एज इट इज। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ना, ये मतलब तब दे पाएंगे जब वो अपने मेन क्लॉज के साथ जुड़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें एक मेन क्लास होता है और एक या एक से ज़्यादा जो है ना वो डिपेंडेंट क्लास जो सबऑर्डिनेट का जो है ना वो क्लास होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लास हमेशा अपने मेन क्लास पे डिपेंड करते रहते हैं। माई मदर केम हेयर फ्राम अफ्रीका व्हेन शी वाज ए स्मॉल गर्ल। माई मदर केम हेयर फ्राम अफ्रीका। अब ये जो है ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये इसका प्रिंसिपल क्लास है, ये इसका मेन क्लास है, ये इसका मेन आइडिया है और ये सेम रहेगा। When she was a girl, when she was a small girl, अब ये जो है ये उसका जो है ना वो सबऑर्डिनेट क्लास है। When she was a small girl, जब वो छोटी लड़की थी। अब अगर अकेला हम इसको लें ना तो इससे कोई मतलब नहीं निकलता। जब वो छोटी लड़की थी, जब वो छोटी लड़की थी, तो इससे क्या मतलब निकला। लेकिन उस सेंटेंस को देखें, माई मदर केम हेयर फ्राम अमेरिका, फ्राम अफ्रीका, मेरी माँ यहाँ पे अफ्रीका से आई है। तो ये सेंटेंस हर जगह पर अपना मतलब मफहूम रखेगा। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें एक जो है ना सबऑर्डिनेट, एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जो हमेशा मीनिंगफुल होता है। वसीम, हु इज़ अ प्रोमिनेंट साइकियाट्रिस्ट, थॉट द पेशेंट वुड रिकवर फ्रॉम द मेंटल रिटार्डेशन। वसीम, हु इज़ अ प्रोमिनेंट साइकियाट्रिस्ट, जो कि बहुत बड़ा मशहूर साइकियाट्रिस्ट है, थॉट द पेशेंट वुड रिकवर फ्रॉम द मेंटल रिटार्डेशन, उसने सोचा कि मरीज़ जो है वो जहनी बीमारी से निकल आएगा। मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेशन से मुराद है कि जहनी तवाज़ुन खो बैठना। मेंटल रिटार्डेशन, वुड रिकवर फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन। नाउ सी वसीम, हु इज़ अ प्रोमिनेंट साइकियाट्रिस्ट, जो कि बहुत बड़ा मशहूर जो है ना वो साइकियाट्रिस्ट है। अब ये जो है ना ये डिपेंडेंट क्लॉज है।
जो कि मशहूर साइकाट्रिस्ट है, मारूफ साइकाट्रिस्ट है। अब अगर अकेला इसको किसी को जाकर कहें कि जो कि मारूफ साइकाट्रिस्ट है, जो कि मशहूर साइकाट्रिस्ट है, तो इसे क्या मतलब कहेंगे, क्या मतलब है तुम्हारा। लेकिन जब ये जुड़ जाए इसके साथ वसीम, हु इज़ ए प्रोमिनेंट साइकाट्रिस्ट, जो कि मारूफ साइकाट्रिस्ट है, उसने ये सोचा कि मरीज़ इस बीमारी से रिकवर हो जाएगा। सो दिस इज़ वे यू कैन सी दैट हाउ द डिपेंडेंट क्लास इज़ गोइंग टू add meaning to the independent clause, and when they live together they make the sentence more comprehensive. अगर इसको हटा भी दे ना, इसको हटा भी दे तो ये सेंटेंस अपने मीनिंग कंप्लीट रखेगा कि वसीम थॉट the patient would recover from the mental retardation. So this is how we use this independent clause and combine with this dependent clause. अब मल्टीपल सेंटेंसेस जो होते हैं दे आर कॉल्ड कंपाउंड कम्प्लेक्स। ओके, इसमें कंपाउंड भी हैं, कम्प्लेक्स भी हैं। हैव एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लास। उसमें जिस तरह कम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट क्लास था, इसमें 2 होते हैं। 1 आर मोर सबऑर्डिनेट क्लास, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा, 1 या 1 से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लास होती है। अब इसको देखें कि इसमें मेन क्लास कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लास। ही वॉज सिटिंग हिज होम डिस्ट्रिक्ट, इंडिपेंडेंट क्लास, एंड लुकिंग at the familiar scenes, independent class, which remind him of his childhood. This is subordinate class. ये एक जो है ना वो मल्टीपल सेंटेंस आपके पास है कि he was sitting at he was visiting his home district, ये एक पार्ट है और ये इंडिपेंडेंट क्लास है। एंड लुकिंग एट द फेमिलियर सीन, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, और इन दोनों को हमने यहाँ पे यूज़ किया है एंड के साथ। अब देखिए इसको हम कंपाउंड कम्प्लेक्स क्यों कर रहे हैं। देखिए कम्प्लेक्स के अंदर क्या था, कम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट था, एक डिपेंडेंट था। कंपाउंड के अंदर क्या थे, कंपाउंड के अंदर 2 इंडिपेंडेंट थे जो तो अब ये ना ही वॉज विजिटिंग हिज होम डिस्ट्रिक्ट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। फिर लुकिंग एट द फैमिलियर सीन, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लास को कंजक्शन के साथ जोड़कर इसने कंपाउंड बनाया। यहाँ तक अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड को मल्टीपल की तरफ लेकर जा रहा है। अब अगर ये देखें कि एंड लुकिंग एट दिस सीन विच रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड, जो इसको रिमाइंड करें, तो अब ये जो इसको रिमाइंडेड वाला पार्ट है ना, ये इस पार्ट के लिए इसका सबऑर्डिनेट बन गया। जो जिसने उसको बचपन का रिमाइंड करवाया, इसको अकेले का मतलब बनाओ तो बेमानी हो जाएगा। जो जिसने उसको बचपना याद दिलाया, जिसने उसको बचपना याद दिलाया, इसे कोई कंप्लीट सेंस नहीं लेकर आए। तो ये जो है ना विच रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड, ये सबऑर्डिनेट है, ठीक है, ऊपर वाले का सबऑर्डिनेट है। तो ये सबऑर्डिनेट और ये ऊपर वाला इंडिपेंडेंट मिलकर ये बना कम्प्लेक्स। और ये ही वॉज विजिटिंग एक इंडिपेंडेंट है, एंड लुकिंग एट द फेमिलियर सीन ये दूसरा इंडिपेंडेंट है। तो ये इसका और इसका आपस में ताल्लुक कंपाउंड का है, इसका और ऊपर वाले के साथ ताल्लुक कम्प्लेक्स का है। तो ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, व्हाट वी कॉल देम एज ए मल्टीपल सेंटेंस। सो जब आप लिखते हैं तो शुरू में हम सिंपल सेंटेंसेस लिखते हैं, लेकिन आगे चल के आसा फिर हम कंपाउंड और कम्प्लेक्स और मल्टीपल सेंटेंस की तरफ जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ सिंपल बता दूं कि सिंपल सेंटेंस का ये इशू होता है कि सिंपल सेंटेंस के अंदर योर स्टाइल बिकम्स जेकी। जेकी का मतलब क्या होता है कि उसमें आपको फिर झटके लग रहे होते हैं। झटके से मुराद ये कि व्हेन यू राइट, जब आप लिखते हैं तो यू सिंपल से दैट जब आपने अंग्रेज़ी में लिखना शुरू किया था तो आपने देखी कि इनिशियली यू वर यूजिंग दिस जेकी स्टाइल। जब हम छोटे होते थे और आप लिखते थे तो हम लिखते थे कि याद करें कि बचपन में जो आपने कैमल पे ऐसे लिखा था कि कैमल हैज़ ए 4 legs फुल स्टॉप, कैमल हैज़ 2 ears फुल स्टॉप, कैमल हैज़ 2 eyes फुल स्टॉप, कैमल हैज़ 1 tail फुल स्टॉप। ये जो आप यूज़ करते थे ना, दिस इज़ कॉल्ड जेकी स्टाइल। इसमें मकसद है कि आपकी लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंसी नहीं होती, उसमें झटके लगते हैं। कैमल हैज़ 4 legs, कैमल हैज़ 2 eyes, कैमल हैज़ 2 ears। तो ये इसके अंदर फ़्लो पैदा करने के लिए फिर हम कम्प्लेक्ट जो है ना वो कंपाउंड में जाते हैं, कम्प्लेक्स में जाते हैं, मल्टीपल में जाते हैं। तो उसमें बात के अंदर एक तसलसल, एक रवानी पैदा होती है, दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल लाइक दिस थिंग। सो these are the simple example of this. I got a plate, simple sentence, and it was raining dogs and cat outside, यहाँ तक कंपाउंड बना। I came but you were sleeping, ये कंपाउंड सेंटेंस है। I came to visit but you were absent, ये कंपाउंड सेंटेंस है।
आई गॉट अप लेट एंड इट वॉज रेनिंग डॉग्स एंड कैट्स। मैं लेट उठा और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग डॉग्स एंड कैट्स, ये इडियम है, इसका मतलब है तेज़ बारिश हो रही थी। मोर ओवर द पावर फेल्ड, फिर ऊपर से बिजली भी चली गई। देखिए हम यहाँ पे कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ चले गए और इस कम्प्लेक्स को और ज़्यादा ले जाएंगे तो देन यू विल गो टू मल्टी। आई गॉट अप लेट एंड इट वॉज रेनिंग डॉग्स एंड कैट्स, मोर ओवर द पावर फेल्ड, हाउएवर आई मैनेज टू रीच इन टाइम। अब इसमें देखिए कितने कंजक्शंस यूज़ हुए हैं। यहाँ पे एंड यूज़ किया आपने, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, मोर ओवर यूज़ किया, ऊपर से बिजली चली गई, हाउएवर फिर भी, आई मैनेज टू रीच इन टाइम। ओके, देखिए यहाँ पे आपने जो है ना वो एक कॉमा, दो सेमी कॉलन और फिर एक फुल स्टॉप उठाकर यूज़ करके यू जस्ट मेड अ वन मल्टीपल सेंटेंस। तो दिस इज हाउ वी कैन जस्ट डेवलप दिस मल्टीपल सेंटेंसेस। इस तरीके से आप जब सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें एक चीज़ का जहन में रखा करें कि सेंटेंस के अंदर एक तरतीब होती है, व्हाट वी कॉल ऑर्डर इन अ सेंटेंस। ओके, तो उस ऑर्डर का ख्याल रखा करें कि ऑन द वेरी डे शी लॉस्ट हर पर्स एंड डॉग एंड हस्बैंड। अब देखिए यहाँ पे उसी दिन उसका जो है ना वो पर्स भी खो गया, उसका डॉग भी खो गया, उसका हस्बैंड भी खो गया। हम लेस इम्पॉर्टेंट से मोर इम्पॉर्टेंट की तरफ जा रहे हैं। दिस कॉल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, फ्रॉम लेस इम्पॉर्टेंट टू मोर इम्पॉर्टेंट। उसी दिन उसका पर्स खो गया, डॉग खो गया और हस्बैंड भी खो गया। दैट्स कार्ड फ्रॉम लीस्ट इम्पॉर्टेंट टू मोर इम्पॉर्टेंट, क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं। इस राइटअप में मज़ा ये होता है कि आपका जो पढ़ने वाला होता है उसके अंदर एक तजस्सुस पैदा होता है। या तो आप क्लाइमेक्स से नीचे जाते हैं या क्लाइमेक्स से जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ जा रहे हैं। ऑन द वेरी डे शी लॉस्ट हर हस्बैंड, डॉग एंड पर्स, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हस्बैंड था, फिर डॉग था, फिर पर्स था। तो आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट से लीस्ट इम्पॉर्टेंट के ऑर्डर में ले जाएं, या ऑन द वेरी डे शी लॉस्ट हर पर्स, डॉग एंड हस्बैंड लेस इम्पॉर्टेंट से मोर इम्पॉर्टेंट की तरफ ले जाएं। This would be called as a order of the sentence like this. So this way, thank you very much Mehboob for your comment for this productive class. So this is how you understand that what are the these nitty-gritties of a sentence. So is I think that we have given too much time to syntax. Let us move towards other part of language. Here this chapter of sentence is almost over. We covered that what sentence is and what is a phrase, what's a clause and what's independent phrase. Then this independent clause and subordinate clause, and then sentence, the part of sentence, subject and predicate, and outer predicate we covered. We in a predicate we have a verb, we have a verb and object both, or we have a complement, or we have adverbial. Then we classify the sentence into assertive, declarative sentence. In declarative we have affirmative, negative, we have interrogative sentence, we have this imperative sentence, we have a cleft sentence, and also we have optative sentence. Then we classify sentence from this point of view, that how they are being used in a sentence. May it be simple, may it be compound, may it be complex, may it be multiple sentences. So these were the basic areas which are important when you are going to look at one sentence. I think now again we will move forward in our next class, that will be adjective on the next day. So this sentence is your foundation. If you are clear about your one sentence, then you would be clear about the other structures and you will just take them along. And these areas are very important when you fall into the domain of a composition, especially composition skills. They need you this agility, and I often recommend my students that they need to be clear about the basics of a sentence or the language component, so that when they start using language, then they must be familiar with the parts. So if you know each part and its function and its scope, its domain, then you can make a very wonderful sentence, and then there comes correctness. This brings correctness in your language. Remember, I told you that initially you go with the foundation. When you are dealing with your foundation language, don't worry about these grammars, etc. That's not a big deal. First go with that thing. But those students who are at the level of correctness, these classes will be
helpful for them. Those who are beginners, they simple go with that. You are beginning, keep writing, may be wrong, don't worry about that. Keep speaking, may be wrong, don't worry about that thing. It's not a big deal. Initially it's not a big deal. Go with your start, whatever you have, just start writing short sentences, speaking short sentences. There may be some mistakes, some errors. I already told you, don't worry about that thing. But after that foundation, जब आपकी foundation बन जाती है, in the next layer we need a syntax to correct it. Then after correctness there comes greatness in this language. I think that we have given good deal of a time, a good deal amount of time to this syntax. Let's move towards the semantics. अब semantics पे आएंगे and we would watch this video. FM line in. कलर जल्दी बताओ कौन सा कलर है? ये कलर जी, which color is this? कलर कौन सा है? जल्दी बताओ, बताओ, बता दो, जल्दी बताओ, मैं बता रहा हूँ। बताओ ना फिर कौन सा कलर है ये? ये कलर, हाँ ये कलर कौन सा है? ये कलर बोलो। जी मैं ये कलर पूछ रही हूँ, which color is this? ये कलर जल्दी बताओ कौन सा कलर है ये? बता रहा हूँ। कब बताओगे आप? जल्दी बताओ, बताऊँगा। जल्दी बताओ कौन सा कलर है? बता रहा हूँ। जल्दी बताओ, बताता हूँ। कब बताओगे? अभी तो जल्दी बताओ फिर। जल्दी बता रहा हूँ। कौन सा कलर है? ब्राउन भी है ये। हाँ ये ब्राउन नहीं है, कौन सा कलर है ये? ब्लैक भी है। हाँ ये ब्लैक भी नहीं है, कौन सा कलर है? ये कलर जी ये कलर, ब्लैक भी है। हाँ ये नहीं है ब्लैक कलर, कौन सा कलर है? Low battery. अब नहीं, जल्दी बताओ। ब्राउन नहीं है। मुझे पता है ये ब्राउन नहीं है, कौन सा कलर है? ये कलर जी ये कलर, ये बोलो। जी ये बोल रही हूँ, कौन सा कलर है? ये कलर बस एक ही बात, ये कलर, ये कलर, ये कलर। ये कलर नहीं ये कलर, ये जी कलर कौन सा है? पर पर्पल। Okay. Now look at that, what is happening within this video. The relationship between teacher and student, that's very important. And here, I don't know what it could be the outcome of this teacher. The way the teacher is going to teach this student, this is really pathetic. That's really, from my point of view, this is pathetic. ये बड़ी परेशान कुन बात है. देखिए पहले मूड में आपने सुना होगा, हो सकता है आपको ये लगा हो कि दिस इज़ ए जोक, थोड़ा आपने एंजॉय किया हो, बट दिस इज़ अ डिप्लोरेबल स्टेट फॉर मी. ये चीज़ मेरे लिए बड़ी परेशान कुन है. द रीज़न इज़ दिस, इन दिस क्लिप we listen that a teacher asks a small boy to tell her what a color it is. So that is a teacher and a student. We listen that a teacher asks a small boy to tell her what a color it is. अब देखिए what a color it is, यहाँ पे मैं अगर what is a color लगाऊंगा तो ये सवाल बन जाएगा. मैं यहाँ पे सवाल नहीं बना रहा हूँ. वो पूछ रही है कि ये कौन सा कलर है. what a color it is. इसको आखिर में रखा है. अगर what is को आगे what के बाद is लगाऊंगा तो फिर मैं फुल स्टॉप नहीं कर सकता, फिर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन लगाना पड़ेगा. सो वो टीचर पूछ रही है कि ये कौन सा कलर है. The boy is unable to answer the question. बच्चा जो है ना is unable. He can't answer the question or identify the color properly. Or the boy can't identify पहचान नहीं सकता. He can't identify the color properly. So the boy is unable to identify the color. It means that he can't identify the color. And the teacher asked what color it is. He simply lapses the time. Lapse, time kill करना, time गुजारना, time pass करना. कौन सा कलर? ये कलर. ये brown नहीं है, ये black नहीं. He lapses the time.
आइदर बाय रिपीटिंग द क्वेश्चन, या तो वो सवाल रिपीट करता है कि ये कलर पूछ रहे हैं, और मैंशनिंग दैट इट वाज नॉट दिस कलर और दैट कलर, या वो बार बार मेंशन क्या करता है कि ये कलर ब्राउन नहीं है, रेड नहीं है, मैंशनिंग दैट दिस वाज नॉट, इट वाज नॉट दिस कलर और दैट कलर। गुड। द बॉय इज स्कैर्ड, बेसिकली बच्चा क्या है, वो घबराया हुआ है। बट ओइंग टू द प्रेशर ऑफ ए टीचर, लेकिन जो टीचर का उसके ऊपर प्रेशर है, ही इज़ अनेबल टू प्लेनली टेल द टीचर दैट ही डजंट नो द आंसर। असल मसला क्या है? असल मसला ये कि जितना उस टीचर ने उस बच्चे के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है ना, ओइंग टू आप लगा सकते हैं यहाँ पे, आप अगर बिकॉज लगाएं, बिकॉज ऑफ तो बिकॉज भी लगा सकते हैं, ओइंग टू और बिकॉज ऑफ। सो द बॉय इज स्कैर्ड, स्कैर्ड एडजेक्टिव है, इसका मतलब है खौफजदा। शी इज ही इज स्कैर्ड, शी इज स्कैर्ड, द बॉय इज स्कैर्ड, वो खौफजदा है, बट ओइंग टू द प्रेशर ऑफ द टीचर ही इज अनेबल टू प्लेनली टेल द टीचर दैट ही डजंट नो द आंसर। अब टीचर्स के खौफ की वजह से, प्रेशर की वजह से वो उसको बता नहीं सकता कि मुझे ये जवाब नहीं आता। इट इज़ द फेल्यूर ऑफ आवर टीचिंग पैडागॉजी, ये हमारे जो पढ़ाने का तरीक़ेकार है उसका फेल्यूर है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर सकते कि वो हमें ये बता दें कि मुझे ये चीज़ नहीं आती। यहीं से हमारी तालीम की तबाही की शुरुआत होती है। जब हमारा टीचर ये तवक्का करता है कि मुझे मेरा स्टूडेंट्स करेक्ट जवाब दे, मुझे समझ नहीं आती कि हमारा टीचर्स हर टाइम अपने स्टूडेंट से सही जवाब का आर्जुमंद क्यों है। देखिए, जब तक स्टूडेंट्स गलतियां नहीं करेंगे वो नहीं सीखेंगे। तो अगर ये तस्वर ही हमारी एजुकेशन से हम निकाल दें कि बच्चे के पास एक हो कि वो आपको ओपनली बता सके कि मुझे ये नहीं आता, दैट इज़ द प्रॉब्लम। और अगर वो बच्चा हमें डायरेक्ट ये बता दे कि नहीं मैडम या टीचर मुझे ये नहीं आता, आप मुझे सिखाएं, मैं सीखूँगा, तो उससे यह फ़ायदा होगा कि ये बच्चों के जहन से ये जो खौफ है ना, देखें एक बात याद रखें, जहन में रखें, लर्निंग का जो ताल्लुक़ है ना वो सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के साथ नहीं है। कॉग्निटिव डोमेन से मुराद है जो आपकी जहनी सलाहियत है ना, वो कॉग्निटिव डोमेन है, लेकिन वहीं पे फिर साइकोलॉजिकल डोमेन भी मौजूद है। तो लर्निंग का जो ताल्लुक़ है ना वो कॉग्निटिव डोमेन के साथ साथ साइकोलॉजिकल डोमेन में भी है। और जब तक हम बच्चों की साइकोलॉजिकल डोमेन को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये कॉग्निटिव डोमेन इस तरह नहीं पढ़ पाएंगे। और लैंग्वेज में ये बहुत ज़्यादा होता है। सो आई ऑलवेज सपोर्ट माई स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो मसला है, दैट्स व्हाट आई से दैट दिस अ फेलियर ऑफ आवर टीचिंग पैडागॉजी। पैडागॉजी मीन्स अ साइंस ऑफ टीचिंग। आप डॉक्टर हैं, यू स्टडी मेडिसिन। आप इंजीनियर हैं, यू स्टडी इंजीनियरिंग। और कोई बॉटनिस्ट है, ही वुड स्टडी बॉटनी। zoologists, they would study zoology, and physicists, they would study physics. Physicians, they would study medicine. In the same sense, the teacher would study pedagogy. Pedagogy is a science of teaching. पढ़ाना कैसे चाहिए, that's called science of teaching. And this is a failure of its teaching pedagogy. Means the way we are teaching our students, that is not appropriate. Okay, we only induce fear among the students. इंड्यूस होता है दाखिल करना, किसी के अंदर इंजेक्ट करना। हम सिर्फ उनके अंदर खौफ पैदा करें, बट डोंट इनकलकेट कॉन्फिडेंस अमंग देम। मगर हम उनके अंदर कॉन्फिडेंस को नहीं पैदा करते, सो दैट दे कैन ईजली शेयर इफ़ दे आर फेसिंग सम डिफ़िकल्टी इन देयर लर्निंग प्रोसेस, ताकि वो हमसे शेयर कर सकें इफ़ दे आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम इन देयर स्टडीज़। अगर ये बात सिंपल हमारे स्टूडेंट्स के जहन में होती तो वो सिंपल क्या कह देता कि मैडम मुझे ये कलर नहीं आता। और ये इतनी देर जो ये चीज़ डिले हुई, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ आवर टीचिंग मैथडोलॉजी। और अब देखें, टीचर ने आखिर में स्टूडेंट्स को क्या कहा कि आप सिर्फ जो है ना वो कलर करते रहते हो। लुक एट द लास्ट पार्ट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। कलर है? ये कलर नहीं, ये कलर ये जी। ये कलर कौन सा है? पर ओके, सो यू कैन सी दैट ये जो चीज़ है दिस कलर है? ये जल्दी बताओ। ब्राउन नहीं है। मुझे पता है ये ब्राउन नहीं है, कौन सा कलर है? ये कलर जी ये कलर। ये बोल रही हो। जी ये बोल रही हूँ, कौन सा कलर है? ये कलर
बस एक ही बात, ये कलर, ये कलर, ये कलर. This part is a really problem for me, because when the teacher becomes a dictator, he becomes a policeman and he starts treating students. That is where is the issue, and I think if there's no trust between students and teacher, देखिए लर्निंग बुनियादी तौर पे एक ट्रस्ट, एक भरोसा है. अब यहाँ पे क्या है, मुकम्मल तौर पे अदम तहफ़्फ़ुज़ है, बच्चे को अदम तहफ़्फ़ुज़ है. देयर इज़ नॉट that type of a trust or relationship between teacher and student. And if you don't maintain this relationship between students and teacher, then there's no learning. That is a kind of a dictatorship. And I think that if we should stop this dictatorship in the class, we should understand students, we give them free space, we trust them, we allow them to do mistakes. और हर टाइम बच्चों से सही बात की तवक्का रखना is not a teaching. Learning comes through mistakes, and mistakes is the marvelous part of learning. Believe me, mistakes are the marvelous parts of learning. If you are going to stop mistakes, basically you are going to stop learning. You won't be learning like that thing. So this was your listening and reading session, and the next part will be again this will be reading. Today we will read this Pursuit of Our Dreams and Destiny.
Thank you very much. Your reading time is over. Now let us proceed. Pursuits of dream and destiny. परसूट होता है किसी चीज़ की को हासिल करने की, जस्तजू करना, उसके लिए जो है ना वो लगन, जो है ना वो मेहनत करना। तो जो आप उसकी तलाश में, जो आप उसकी जस्तजू, जो आरजू कर में जो कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड परसूट ऑफ ड्रीम्स एंड डेस्टिनी। अपने ख्वाबों को और अपनी मंजिल की तलाश या उसकी जस्तजू या उसी के लिए जो ना खोजना। वंस अपॉन अ टाइम, एक ज़माने की बात है, देयर लिव्ड अ शेफर्ड। There lived a shepherd. एक शेफर्ड रहा करता था। One day he was sleeping under a tree. एक दिन वो एक दरख्त के नीचे सोया हुआ था। Beside a चर्च के साथ, he had a dream. अच्छा, उसने ख्वाब देखा। इसके लिए आप ये लगा, he had a dream, उसने ख्वाब देखा। ये he watched a dream, he saw a dream। इससे बेहतर ये this is not appropriate, better use he had a dream। उसने ख्वाब देखा about the hidden treasure buried at the pyramids of Egypt। उसने ख्वाब देखा एक ख़जाने के बारे में। This is a treasure buried, जो दफन है, at the pyramids of Egypt। pyramids जो अहराम मिस्र हैं, इजिप्ट का मतलब मिस्र के जो अहराम मिस्र हैं, जो अजूबात में शामिल हैं। इसने देखा कि वहाँ उन्हीं अहराम मिस्र में कुछ ख़जाना है, that's buried, there is a treasure that's buried। He decided to achieve the treasure. Look, who's a person? Simple, a shepherd. And what he has in a dream, he had a dream, and in which he had this treasure. And this treasure is buried on the other part of the world. It's not very near. It's not very close. This is pyramids. So he decided to achieve the treasure. There were many obstacles. वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलातें थी, रुकावटें, obstacles, रुकावटें, impediments, रुकावटें, hurdles, रुकावटें, hindrances, रुकावटें, barriers, challenges। उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें थी। ज़ाहिर बात है, when you are just going to get a chair and it's very far, वो इतना दूर है, so there were many obstacles in the way। There was huge desert। रास्ते में एक बहुत बड़ा सहरा था, huge desert with arid sand। arid का मतलब होता है खुश्क, arid sand जिसमें खुश्क रेत थी। governed by windy storms, जिस सहरा पे मिट्टी के तेज़ तूफ़ान जो थे वो हुक्मरानी करते थे। governed by windy storm, विंड तेज़ हवा को, विंडी स्टॉर्म तेज़ हवा वाले तूफ़ान जो थे वो उस सहरा पे राज करते थे। अब इसको वो क्रॉस करने थे, सहरा और ये सब क्रॉस करके और उसने जाना था। हाउएवर ही स्टार्टेड हिज जर्नी। देखिए यहाँ पे मैं कंजक्शन हाउएवर लगा रहा हूँ, इसका मतलब जो भी था, जो भी सूरत-हाल थी, ही स्टार्टेड हिज जर्नी, इसने अपने सफ़र की शुरुआत की। अब ये हाउएवर में क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ऊपर मैंने चैलेंजेस का जिक्र किया, मुश्किलात का जिक्र किया, तो ये सब मुश्किलात के बावजूद होके इसने अपना सफ़र शुरू किया। तो हाउएवर जो भी था, जो भी मुश्किलातें थी, जैसा भी था, ही स्टार्टेड हिज जर्नी एंड नेचर गाइडेड हिम टू ओमेन। अब देखिए ये कंपाउंड सेंटेंस लग रहा है, ही स्टार्टेड हिज जर्नी, फिर कॉमा, एंड नेचर गाइडेड हिम टू ओमेन, ये दूसरा सेंटेंस है। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट पार्ट हैं और दरमियान में क्या है, एंड कंजक्शन लगा हुआ है और एंड कंजक्शन के आगे मैंने कामा रखा हुआ है। एंड नेचर गाइडेड हिम सो ओमिन। ओमिन क्या होती है? ओमिन ये कि आपको फितरत से या कभी कभार आपको इस तरह का एहसास होता है या आपको एक का इदराक होना लगता है कि आपको ये करना चाहिए या ये चीज़ सही है। तो इस तरह की चीज़ें आपको जो है ना वो एक महसूस होती हैं, महसूसात होती हैं, जिसको हम ओमिन कहते हैं। तो गुड ओमिन होते हैं, बैड ओमिन होते हैं। सिंधी में चंदन माण्हू के पसंद पवंदा आहिनि माण्हू खे जेको न, या उर्दू में जो कहते हैं कि जो है ना वो कभी कभार इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं कि उपशगुन होते हैं कि या जो जिन्हें समझा जाता है कि ये ख़राब हैं। तो इस तरह के लोग जो है ना इन चीज़ों पे यकीन करते हैं। तो ये जो है ना इसको नेचर जो है वो इस तरह गाइड करती रहती है। कभी जानवरों की शक्ल में इसको गाइडेंस मिलती है, कभी पहाड़ों से, कभी हवा से, कभी बादलों से। तो इसको बहुत सी
चीज़ें इसको महसूस होती हैं कि ये करे ये ना करे. सो नेचर गाइडेड हिम. सो मीन्स ही फेल इन लव विद अ गर्ल. और चलते चलते एक जगह पर वो एक लड़की को देखता है और उससे मोहब्बत करता है. फेल इन लव विद अ गर्ल एंड वेस्टेड हिज टाइम. और उसमें अपना टाइम ज़ाया किया. एंड डिड अ बिजनेस. फिर इसने बिजनेस भी किया. एंड मेड अ ह्यूज लॉस. और बिजनेस में एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसान किया. बट ही डिडंट गिव इट. ठीक है, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं. अब उसका मकसद इतना बड़ा था और उस मकसद की तलाश में निकला तो रास्ते में कोई खूबसूरत चीज़ देखी, वहाँ से दिल लगी हो गई, उधर रह गया. फिर आगे कोई बंदा मिला, उसको बिज़नेस करते हुए देखा तो फिर उसी जस्ट गॉट इन्वॉल्व इन अ बिजनेस and is moving forward. But the main thing is that he is not going to give in or give up or surrender. Surrender का मतलब होता है हथियार डालना, withdraw, yield. After every failure he resumed his struggle. जब भी मोहब्बत में नाकामी हुई, बिजनेस में नाकामी हुई, इसने दोबारा अपना वो मकसद, अपना टारगेट शुरू किया to find a treasure. He didn't surrender, but after every failure he resumed. रिज्यूम होता है किसी चीज़ को स्टाम्प करने के बाद दोबारा शुरू किया जाता है तो हम वर्ड रिज्यूम लगाते हैं. एक होता है जो है ना हम कभी कभार किसी चीज़ को जो है ना वो पोस्टपोन कर देते हैं, होती नहीं है, उससे पहले हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं कि आज की क्लास थी तो मैं हम कह रहा हूँ कि हम इसको पोस्टपोन करें, तो ये होने से पहले अगर हम उसको छोड़ दें जो है ना चेंज कर दें डेट वगैरह को तो वो पोस्टपोन हो जाती है. एक कर्टेल होती है, CURTAL, कर्टेल. कर्टेल ये होती है कि किसी चीज़ को वक्त से पहले ख़त्म कर देना, दैट्स कर्टेल. ये रिज्यूम है. रिज्यूम का मतलब है कि किसी चीज़ को ही रिज्यूम्ड हिज स्ट्रगल टू ऑब्टेन द treasure. ऑब्टेन, अचीव, हासिल करना, ऑब्टेन हिज treasure. आफ्टर अ लॉन्ग टायरसम जर्नी देयर वाज अ वेरी लॉन्ग टायरसम, टायरिंग, टाइटैनिक, डिफिकल्ट, troublesome, दिस इज टायरसम, थका देने वाली जर्नी. व्हेन ही रीच्ड द प्लेस, व्हेन ही रीच्ड हिज अल्टीमेट प्लेस, व्हाट ही हैड सीन इन द ड्रीम, जो इसने ख्वाब में जगह देखी थी वो उसी जगह जब पहुंचता है ही स्टार्टेड डिगिंग, तो इसने खुदाई करना शुरू की. एंड फाउंड अ चिट, और वहाँ पे उसको चिट मिली. द चिट रीड्स, ओके, द चिट रेड. और चिट पे क्या लिखा था? अच्छा देखिए, एक बार नोट करें, जब हम उर्दू सिंधी में लिखते हैं तो हम कहते हैं कि जो उसको चिट मिली, चिट पे लिखा था. अंग्रेज़ी में उर्दू में हम कहते हैं उस पर लिखा था, लेकिन अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि ही फाउंड अ चिट विच रेड या विच रीड्स. ओके, तो ये जो है ना अंग्रेज़ी में हम जो है ना वहाँ पे राइट की जगह पर रीड यूज़ करते हैं. ये ज़हन में रखें कि देयर इज़ अ होली वर्स इन द होली कुरान. कुरान की एक आयत है विच रीड्स, जिसमें लिखा है. कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें लिखा है, और आप कहेंगे देयर इज़ अ वर्स इन द होली कुरान विच रीड्स. ठीक है, यहाँ पे अल्लामा इकबाल की एक कोटेशन है जिसमें उसने लिखा है, तो अल्लामा इकबाल की कोटेशन को हम अंग्रेज़ी में कहेंगे कि दिस ए कोटेशन ऑफ अल्लामा इकबाल विच रीड्स, रीड. ये नोट करें. द चिट रेड, जो क्योंकि यहाँ पे मैं पास लगा रहा हूँ तो मैंने रे लगाया, ये पूरी बात पास्ट टेंस में चल रही है. सो व्हेन ही रीड द प्लेस व्हाट ही हैड सीन इन द ड्रीम, ही स्टार्टेड डिगिंग एंड फाउंड अ चिट. द चिट रेड दैट द treasure was buried under the same tree he slept and saw the dream or had the dream. ये उसी जगह पर ही है जहाँ पे इसने जो ना वो ख्वाब देखा था. सो द ड्रीम और हैड द ड्रीम, कि ख़जाना उसी दरख्त के नीचे छुपा हुआ है जिस दरख्त के नीचे सोए हुए इसने ख्वाब देखा था. दस द मैन री स्टार्टेड हिज जर्नी बैक. इसी तरह इंसान है उसने दोबारा अपनी जर्नी बैक शुरू की. लाइफ इज़ ऑल अबाउट द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन. ज़िंदगी मंजिल नहीं है, ज़िंदगी सफ़र है. दैट इज़ द वेरी ब्यूटी ऑफ दिस लाइफ. ओके, मंजिलें पे पहुँच कर इंसान कभी कभार तो यकीन पूछे बेईमानी हो जाता है. जो सफ़र की खूबसूरती है ना वो मंजिलों में नहीं होती. अब ये राइटर्स है, पॉलो कोएल्हो का बड़ा फेमस नावल है अल्केमिस्ट. अब देखिए इसमें व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ अ लाइफ. योर लाइफ इज़ लाइक अल्केमिस्ट. You all have a destiny in your life. You all have a destinations in your life. But the problem is that when you have these destinations, you go with this that for time being you feel failure, okay, and this failure is a part of a life. And sometimes you are being distracted, you are being diverted from your original target. You know, when this man starts his journey, that his target is very clear to him. But when he moves forward,
then there are certain distraction. The things they distract your attention. They just carry you away from your original target. But the question is that, as I always say, that show must go on. Don't withdraw in your life. Don't surrender. There are certain, these are some gaps, and these gaps would come in the life of everybody. You can see that the people who are sitting at the apex of success, they had this place since beginning. No, there were shocks, there were these jerks and jolts. They would be there, they would come, and they will just make you learn new things. So I would end this class with the beautiful idea taken from this book of Paulo Coelho's Alchemist, that whenever you want to achieve something, entire universe conspires to get it done. वही चीज़ जो शाहरुख ने मशहूर डायलॉग बोला था कि जब आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है ना आपको उस चीज़ के साथ मिलाने के लिए जो है वो आर्जुमंद हो जाती है. That is the same thing. This is what is your life. So this is not only a novel, this is not only a story. That is what is the life, and this is how we are living. And with these gaps, with these certain distractions, sometimes you are being carried away by certain temptations. Temptations are there, distractions are there, and these things take you away from your original plan, original target. But again, we come back to this our mission where we are. See, for time being, Corona has confined us. We all are bound, we all are limited, we all are confined within our home. But it doesn't mean that we have given it up. It doesn't mean that we have surrendered. We are like, I always say that the successful people have a resilience. What is a resilience? You might have seen a spring. When you press the spring, it goes down. But when you leave it, it again comes back to its original place. This is what is a life, okay? Live like a spring with a resilience. Hold the pressure. But when the pressure is over and you come in the normal state, again jump back to your original place in a position and start living with the perseverance, with the commitment, with the dedication, and with the cause. So love you all. Thank you very much for this wonderful session and for the wonderful participation. And in the 15th class, day after tomorrow, we would talk about adjective, and then this series would go on. Till that, take very good care of yours. Bye bye.